Hi guys, so in the last video we studied what actually is linear equation in one variable. To understand more about the topic, if you guys have any conceptual in clarity, just go to my first video and understand what actually does the word linear equation one and variable mean in the context of your lesson 2 of your NCERT. So going ahead, we will today directly start solving the linear equations today. So that is for your exercise 2.1, and so we will solve the examples of the exercise together today, and we will also solve the examples for exercise 2.2 together. So these are very important, and if you have seen my last video, doing the problems for 2.2 would become extremely easy. So let us start with the example 1 2.2, which is I think on page 22 of your on page 22 of your NCERT. You have example 1. What does your example 1 say? It says that find the solution to 2x minus 3 equal to 7. So it is saying find the solution. What does this term mean? Find the solution. It means find a value of x, okay, for which all of this becomes equal to 7. So find such a value of x कि ये पूरा एक्सप्रेशन 2x माइनस 3 7 के बराबर आ जाए. ओके, सो लेट अस फर्स्ट ट्राई द हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी हम एक रैंडम गेस वर्क करेंगे, यानी तुक्का लगाना. ठीक है, हमें नहीं पता कि x की क्या वैल्यू होगी, तो हम तुक्के लगाएंगे कि भाई 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, और हम चेक करेंगे कि x की क्या वैल्यू डालने पर ये 2x माइनस 3 7 के इक्वल आता है. सो लेट अस गो एंड स्टार्ट विद पुटिंग x इक्वल टू 0. ओके, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, और फिर हम आगे जाएंगे. ओके, सो 0 डालने पर आई विल गेट 2 इंटू 0 माइनस 3. वो क्या होता है? माइनस 3. क्या ये 7 के बराबर है? नहीं जी, ये तो 7 के बराबर नहीं है. सो दिस इज नॉट योर आंसर. ओके, देन लेट मी पुट x इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा 2 into 1 minus 3, which is equal to minus 1. Now is this equal to 7? This is not equal to 7. Okay, let us try another solution. X equal to 2. So we put 2 into 2 minus 3, which is 4 minus 3, which is 1. Is 1 equal to 7? It's obviously not equal to 7. Okay, we will go ahead in the similar manner. Let us again put x equal to 3, x equal to 4, x equal to 5. ओके, सो x equal to 3. अब हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे. हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था 2x माइनस 3. सो x यहाँ पर क्या है? 3. लेट्स डू इट इन आवर माइंड्स. ओके, सो 2 into 3 minus 3, which is 6 minus 3, which is 3. So is 3 equal to 7? No ma'am, no sir, it is not equal to 7. Okay, let's put 4. So 2x, what was the question again? 2x minus 3 equal to 7. 2 into 4 minus 3, what is it? 2 into 4 minus 3, first, that is 8 minus 3, 5. Is 5 equal to 7? 5 equal to 7? No, it is not equal to 7. So you have to do these calculations with me. Even though I am in the video doesn't mean that I am not there with you. So do these calculations fast. Now we'll try with x equal to 5. Let's go to the question. 2 into 5 minus 3. 2 into 5, 10. 10 minus 3, 7. Is 7 equal to 7? It obviously is equal to 7. So here is our answer, x equal to 5. So this method that we have used, guys, is a random method. Now obviously it took a lot of time. We calculated x equal to 0, calculated 1, we calculated 2, फिर हमने 3 calculate करा, 4 करा, and then we calculated 5. So do you think you have that much time in your exams? No, and even the questions are going to be tougher and bigger. So that is why we have to learn the other method which your NCERT tells you, और उससे भी थोड़ा simple करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी. So please pay a lot of attention here. So again I am writing the question. 2x minus 3 is equal to 7. सिंपल रूल ये होता है कि जो आपका LHS पर है ना फ्रेंड्स, वॉट एवर इज देयर ऑन द LHS, जब वो जाता है RHS में, यानी कि जो लेफ्ट में था वो चला गया राइट में, तो उसके आगे जो ये साइन होता है वो ये वाला जो साइन होता है ये
ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, ऑपोजिट हो जाता है। अब आप ये बताओ मुझे, यहाँ पे 3 जो है ये 3 है या ये -3 है? This is -3 and that is a very important concept. It is -3, it is not 3. So you have to remember कि ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये 3 का साइन है, ओके। अब जहाँ पे कोई साइन नहीं होता हम क्या कहते हैं कि वो प्लस है, तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, और ये +2 का है, ठीक है, और वो वाला +7 का है, करेक्ट। तो आपको सारे साइंस पता लग गए हैं। तो जब अब आप 2x - 3 = 7 है, 7 is a constant, 3 is a constant, which means that 7 और 3 belong to one family, ठीक है। x तो वेरिएबल है जी, ये हमें पता है कि x वेरिएबल है, हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। तो वेरिएबल इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली, ठीक है। तो जो सेम फैमिली के लोग होते हैं उनका ही तो हम ग्रुप बनाते हैं ना। हम अलग अलग लोगों को एक साथ डाल देंगे तो क्या हम उसे फैमिली कहेंगे? हम नहीं कहेंगे। ऑल्दो एवरीबडी इज डिफरेंट इन अ फैमिली, 7 इज अ डिफरेंट नंबर, 3 इज अ डिफरेंट नंबर, बट दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, सो दे शुड लाई टुगेदर, करेक्ट। पर यहाँ पे देखो इक्वेशन में क्या हो रहा है, एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट को डाल दिया है तो वो अकेला अकेला लग रहा है उन दोनों को। 2x को अकेला लग रहा है, 3x को अकेला लग रहा है, और ये 7 यहाँ अकेला ही लड़ रहा है बेचारा RHS में। वो कह रहे हैं कि यार मैं कांस्टेंट हूँ भाई, 3 तू भी कांस्टेंट है, तू तो मेरे साथ आ, कम से कम तू तो यूनिटी बना मेरे साथ। तो -3 कहता है ठीक है भाई मैं तेरे पास आ जाता हूँ। पर हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि व्हेन समथिंग गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इट्स साइन चेंजेस। मतलब अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो बहुत सिंपली -3 कहता है कि भाई तू 7 अकेला मत फील कर, मैं तेरे पास अभी आ जाता हूँ। तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? ये बन जाएगी 2x = 7 + 3, माइनस चला गया यहाँ, माइनस यहाँ आ गया, प्लस हो गया, और 3 ऐसा का ऐसे यहाँ चला गया। तो ये हो गया 2x = 7 + 3। अब बड़ी सिंपल बात है, 2x = 10 हो गया। यहाँ तक हम आ गए, बहुत ईजी है। अब मुझे एक बात बताना, थोड़ा लॉजिक लगाकर, अगर जो चीज़ यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो रही है, या जो चीज़ यहाँ प्लस होती वो यहाँ जाके लेफ्ट में जो प्लस होता वो राइट में जाके माइनस होता, तो कॉमन सेंस से ऐसा नहीं लगता कि जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी? मतलब मैं दोबारा लिखती हूँ इस चीज़ को कि 2x - 3 = 7, जो चीज़ यहाँ -3 वो राइट में जाके प्लस हो गई। तो थोड़ा सा सोचो कि जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है क्या वो यहाँ जाके डिवाइड नहीं हो जाएगी? ऐसे ही मतलब लगता है ना कि हो जानी चाहिए। तो ये ठीक लग रहा है आपको क्योंकि ये हो जानी चाहिए। जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली भैया अगर यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा होता तो वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि भैया ऑपोजिट करना है। अगर लेफ्ट में कोई चीज़ प्लस है वो राइट में माइनस हो जाएगी, लेफ्ट में अगर कोई चीज़ माइनस है तो राइट में प्लस हो जाएगी, लेफ्ट में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है तो राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड चीज़ है, इसमें कोई आपने ना दिमाग नहीं लगाना, बस ये चीज़ समझ लेनी है कि भैया अगर एक साइड पर मैं प्लस हूँ तो दूसरी साइड जाके माइनस ही हो जाऊंगा ना। आप ऐसे सोचो कि आपकी जो लेफ्ट साइड है, आपको लेफ्ट में आपका एक ड्राइंग क्लास चल रही है, आप ड्राइंग में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, ठीक है, बहुत बेकार हो आप, जैसे मैं हूँ। अब राइट में ना आपकी मैथ्स की क्लास चल रही है, मैथ्स में आप एकदम A-लेवल सुपर 1 टॉपर हो। तो भाई लेफ्ट में अगर आप माइनस हो रहे हो, आप कोई क्वालिटी नहीं दे पा रहे ड्राइंग में, तो राइट में जहाँ आपकी मैथ्स चल रही है वहाँ जाकर आप प्लस हो जाओगे ना, क्योंकि आप उसमें बहुत अच्छे हो। तो यही चीज़ कांस्टेंट के साथ है। अगर एक कांस्टेंट यहाँ पर माइनस है, अच्छा नहीं कर रहा, तो वो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। और ऐसे ही अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं दोबारा से ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करती हूँ, ठीक है। जब हम LHS में होते हैं और फिर हम RHS में जाते हैं,
या RHS में होते हैं और LHS में जाते हैं, कैसे भी कहीं भी जाते हैं। पर अगर इस इक्वल टू के पार जाते हैं या इस इक्वल टू के पार यहाँ आते हैं तो साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात है, यहाँ का प्लस बन जाता है माइनस, यहाँ का माइनस बन जाता है प्लस, यहाँ का जो डिवाइड है वो बन जाता है मल्टीप्लाई, और यहाँ का मल्टीप्लाई बन जाता है डिवाइड। तो कॉमन सेंस से जो ये माइनस है ये यहाँ जाके प्लस भी तो बनेगा ना, मतलब कि ये भी करेक्ट है। यहाँ का प्लस यहाँ जाके माइनस भी बनेगा, करेक्ट, मतलब कि ये भी करेक्ट है। यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड भी होगा, यानी कि ये भी करेक्ट है। और यहाँ का डिवीजन यहाँ जाके मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये भी करेक्ट है। Take a screenshot of this please guys, okay, and just remember that if you are going from one side to the other side, the signs are going to get opposite. Coming back to our question, where had we left our question? Over here, okay. I am carrying this on the next page. 2x is equal to 10. This 2 and this x is getting multiplied with each other, isn't it? Isn't it? From algebraic expressions you know that these are getting multiplied together. Even if you want more explanation, drop a comment, I'll explain why these are getting multiplied together. Now we just studied that what is getting multiplied will go to the other side and get divided. So 2 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है। खुद से सोचो, खुद से दिमाग लगाओ। अगर 2 कांस्टेंट है और 10 कांस्टेंट है तो उनको साथ में होना चाहिए, जैसे हमने 3 और 7 को साथ में किया था, रिमेंबर दैट, राइट? सो सिमिलरली दिस 2 इज गोइंग टू गो 10 के पास, पर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके 10 के साथ ही डिवाइड हो जाएगा ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 10/2. I'll repeat this again for your benefit. 2 is getting multiplied with x over here. 2 is also a constant, 10 is also a constant. इन दोनों को जाकर के फैमिली बनानी है अपनी कॉन्स्टेंट्स की, तो 2 भी यहाँ आ जाएगा। बट क्या वो यहाँ आके मल्टीप्लाई ही होगा? यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा? नहीं जी, मल्टीप्लाई नहीं होगा वो, दिस विल बी रॉन्ग। वो यहाँ आके डिवाइड होगा। हमने अभी अभी सीखा था क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रूल। सो x is equal to 10/2. What does this imply? It implies that x is equal to 5. Very simple. And if you remember, हमने जो तुक्का करा था, जो हमने गेस वर्क करा था, उसमें क्या आंसर आ रहा था? उसमें भी x इक्वल टू 5 ही आपका आंसर आ रहा था। तो जब आप ये बोर्ड के रूल्स सीख लोगे, अच्छे से सीख लोगे, समझ लोगे, तो ये जो चीज़ है आप 10 सेकेंड्स में गाइज सॉल्व कर लोगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एट ऑल डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, उठाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 उसी पेज का। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको क्या कहता है? वो कहता है 2x प्लस, वो कहता है 2y प्लस 9 इक्वल टू 4। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल वाला पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ओहो मेरा क्वेश्चन कहीं चला गया है, कोई बात नहीं। 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। हमें ये पता है कि कांस्टेंट और कांस्टेंट साथ रहेंगे, प्लस साइन यहाँ से जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगी 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9। इज दिस करेक्ट? तो दिस इज करेक्ट। 4 माइनस 9 क्या होता है? -5। सो 2y इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आ रही हूँ मैं। 2y इज इक्वल टू -5। 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और 5 कांस्टेंट हैं तो साथ होना चाहिए। पर क्या 2 5 के पास जाके डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा? वो डिवाइड होगा, क्योंकि हमने टेबल में अभी देखा था। तो y इज इक्वल टू -5/2। क्या आपका आंसर क्या आ गया?
-5/2। अब आप सोचो कि अगर आप वो तुक्का वाला मेथड यहाँ लगाते तो वो नहीं चलता, क्योंकि आपके माइंड में ना बिल्कुल नहीं आता कि आप 1 2 -1 -2 रखते रहते, बट आप -5/2 कभी भी नहीं रखते। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया बहुत सिंपली। अब हम और एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल 3 है आपका। एग्जाम्पल 3 आपको कहता है x/3 प्लस, आई एम सो सॉरी, 5/2 इज इक्वल टू -3/2। हम बहुत सिंपल चीज़ वही करेंगे। ये जो है ये कांस्टेंट है ना, ये चीज़ नहीं बदलने वाली ना। -3/2 तो कांस्टेंट है, 5/2 भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को साथ होना चाहिए। तो मैं लिखूंगी ये वाला साइन, इस साइन का मीनिंग होता है इम्प्लाइड। ठीक है, इम्प्लाइड का मतलब आप जाकर इंग्लिश की डिक्शनरी में देखेंगे, आपका ये होमवर्क है कि इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है। तो x/3 इज इक्वल टू -3/2। अब ये बताओ कि अगर ये 5/2 के साथ अभी प्लस है तो यहाँ आकर के क्या वो माइनस नहीं हो जाएगा? बिल्कुल वो माइनस हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा था। तो ये हो जाएगा -5/2, करेक्ट। दिस इम्प्लाइज x/3 इज इक्वल टू, ये देखो इन दोनों का LCM आता है 2, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा 5। दिस इम्प्लाइज x/3 is equal to -8/2. Am I right or not? I am right. x/3 is equal to -8/2. अब ये बताओ -8/2 क्या होता है? -4। आई एम श्योर आप लोगों को इतना आता है। ठीक है, -4। तो क्या मिल गया? x इक्वल टू, अब ये बात बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर। हमने अभी पढ़ा था ना कि जो चीज़ LHS में डिवाइड होती है वही चीज़ RHS में मल्टीप्लाई होती है। मैं टेबल पे वापस जाती हूँ, देखो जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है वो यहाँ हो रही है मल्टीप्लाई। तो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, कॉमन सेंस लगाते हैं। 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि -4 × 3। सो x इज इक्वल टू -12। दिस इज योर आंसर। आई थिंक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको समझ आ रहा है। आई एम गोइंग ऑन एग्जाम्पल 4। बहुत जल्दी मैं एग्जाम्पल 4 पे जाऊंगी। एग्जाम्पल 4 कहता है 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। अब एक बात बताओ, 15/4 इज अ कांस्टेंट, 9 इज अ कांस्टेंट। 15/4 के साथ क्या साइन छुपा हुआ है? प्लस साइन छुपा हुआ है, तो ये यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है -7x इक्वल टू 9 - 15/4। करेक्ट और नॉट? इसका मतलब है LCM लो बच्चों, LCM आया 4, 4 9s are 36 -15, ये आ गया आपका 21/4। 21/4 आ गया। तो आपके पास क्या आया? -7x इज इक्वल टू 21/4। 21/4 क्या होता है? 7 होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। अब ये देखो यहाँ पर 7 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 और 7 कांस्टेंट हैं, तो ये 7 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब -x इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, इसका मतलब है, मैं इसे इरेज कर दूँ इससे पहले कि कंफ्यूजन हो जाए। -7x इज इक्वल टू 21/4, यानी -7x इज इक्वल टू 7, यानी कि -7 और 7 कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पर -7 और x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -7 और x मल्टीप्लाई हो रहा है। एम आई राइट और नॉट? येस आई एम राइट। सो x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय -7। -7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1। 7 ओवर -7 इज -1। ये आ गया है आपका सोल्यूशन। जाते हैं बहुत जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज इज योर होमवर्क. आई विल स्टिल मेक अ वीडियो ऑन द एक्सरसाइज, बट आई वुड लाइक फॉर यू गाइज टू अटेम्प्ट इट फर्स्ट योर सेल्फ. उसके बाद में वीडियो आएगा, नहीं तो आप लोग कॉपी करोगे. सो मैं भी करती थी, इसलिए मुझे पता है कि आप लोग भी करोगे. तो ये वीडियो का टाइम अप हो रहा है. सो हमने आज सोचा था कि हम बाकी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, पर हमने नहीं किए. पर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा. पर आज हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है, मैं दोबारा उसके ऊपर जा रही हूँ. आपने दोबारा से उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसे याद रख लेना है. जो चीज़ LHS पर है वो RHS में जा कर के साइन ऑपोजिट हो जाता है. कुछ ऐड हो रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, कुछ माइनस हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा. चाहे वो RHS से LHS में आए, चाहे वो LHS से RHS में जाए, चाहे कुछ भी हो, इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड आने पर साइन बदलता है. गेटिंग इट गाइज? बदलना ही है. you've got no option. You coming from RHS to LHS, LHS to RHS, you will change the sign. And another very common mistake that children do इस जब 7x लिखा होता है, 3x लिखा होता है, 2x लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि 7 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं. क्योंकि एक बात बताओ, जब आप कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई होने के लिए साथ में लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? आपके पास दो तरीके होते हैं ना, 2 into 3, या आप लिखते हो 2.3, या आप लिखते हो 2 (3). वैसे ही ये 2 (x समझ लो आप इसको, ये 2x ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. बस ये याद रखना कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. इनके बीच में और कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसलिए जब ये 2 LHS के पास जाएगा, यानी इक्वल टू के इस पार जाएगा, तो ये यहाँ पर कुछ भी हो उससे ये डिवाइड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. ठीक है guys, I am stopping the lesson here. In the next video we are going to do the examples of exercise 2.3. Bye bye.